Friends, we have started with our 8th chapter, that is India during Mauryan period. In that we saw the rise of Magda Empire, then we saw the Nanda and Mauryan Empire, like how Nanda dynasty came to an end, which was well organized, जिसमें बहुत सारे soldiers थे, बहुत सारी military थी, बहुत ज़्यादा treasure था. Yet came to an end and Maurya Empire started flourishing. So Chandragupta Maurya, he was the head. After that Bimbisara became the king और उसके बाद Ashoka became the king. Now we are going to look about the Emperor Ashoka. Ashoka became the emperor of Maurya Empire after the death of Bimbisara. Now Ashoka कब emperor बना? जब Bimbisara was no more. He got himself coronated in 268 BCE. He called himself as Devanupippo Piyadasi, beloved of the god. अभी अशोका खुद राजा बन गया and he called himself as a beloved of the god. In many of his rocks edict and the pillar inscription अपन देखते हैं ये. During the early period of his rule, Ashoka adopted his ancestors' policy of Digvijaya and expansion of kingdom. अभी अशोका ने क्या पॉलिसी अपनाई? जो उसके ग्रैंडफादर फादर ने पॉलिसी अपनाई, दैट इज एक्सपेंशन. इवन ही अडॉप्टेड द सेम पॉलिसी. Ashoka victory at Kalinga proved to be the turning point in the history as well as in the life of Ashoka. अभी अशोका की जो विक्ट्री थी कलिंगा में, it proved to be the turning point in his life as well as in the history. There was a great human loss in this war. अब उस वॉर में क्या हुआ? बहुत ज़्यादा लॉस हुआ. Ashoka anyway he became victorious. The destruction caused due to the Kalinga war brought about a great changes in the mind of Ashoka. अभी वॉर तो हम जीत गए, बट उस वॉर में क्या हुआ? बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई. इससे क्या हुआ? अशोका के माइंड में कुछ चेंजेस आ गए. His mind got diverted towards the non-violence, peaceful Buddhist region. अभी अपन ने बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म देखा था, तो अशोका का माइंड क्या हो गया? His mind diverted towards the non-violence and peaceful Buddhist region. The desire of Digvijay was replaced by Dharma Vijay. अभी जो डिज़ायर था कि बाबा हर रीजन कॉन्कर करना है, अपना एक्सपेंशन करना है, अपना एम्पायर का एक्सपेंशन करना है, अब इट गॉट रिप्लेस्ड बाय धर्मा विजय. His career proved to be important because of the religious ideals propagation by him and the creation of mechanism to until it in people's life. अभी उनका करियर इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने रिलीजन आइडियाज़ उसको सबको महत्व दिया एंड ही स्टार्टेड. और लोगों को में भी उन्होंने वही जागरूक किया कि बाबा अपना लाइफ आप अच्छे से जियो, सत्य इन सब का ध्यान रखो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, इन सब पे आइडियोलॉजीज पे उन्होंने लोगों को भी समझाया. For the implementation of Digvijay, Ashoka introduced some new policy. For example, appointment of Dharma Mahamantras, ban on toxic drinks. अभी जो इम्प्लीमेंटेशन करना था उनको धर्म विजय पे अशोका ने नए पॉलिसी लाए. फर्स्ट वाला धर्म महामंत्रास. धर्म महामंत्रास बोल के लाए. सबसे पहले उसने टॉक्सिन्स वगैरह जो बैन, उस पर ड्रिंक्स वगैरह थे, लाइक शराब वगैरह नशीली चीज़ें थी, उस पर बैन लाया. देन गाइडिंग प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट. फिर कोड ऑफ कंडक्ट अपन ने देखा जाएगा 8 कोड ऑफ कंडक्ट एंड ऑल, उस पर उन्होंने लोगों को गाइड करना शुरू किया. देन अशोकास पॉलिसी ऑफ धर्मा मीन्स विक्टोरियस कंडक्ट बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज़. फिर धर्मा पे उन्होंने पॉलिसी बनाई ताकि आप अपने अंदर के वैल्यूज़ देखो और उनको इम्पोर्टेंस दो. ही सेंट मॉन्क्स टू वेरियस कंट्रीज फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म. अशोका ने क्या किया? बहुत से मॉन्क्स मतलब सेंट वगैरह बोलते हैं ना, तो उनको उन्होंने बहुत से कंट्रीज में भेजा ताकि बुद्धिज़्म अच्छे से spread हो सके. The first Buddhist council was held at Rajgira after the Mahaparinibbana of Gautam Buddha. अभी फर्स्ट काउंसिल का हुआ था बुद्धिज़्म का
It was held at Rajgira after the महापरिबना ऑफ गौतम बुद्धा. जब गौतम बुद्धा को मेडिटेशन के बाद थोड़ा सा फ्यूचर वगैरह दिखने लग गया था, when he really got that spiritual values and all, तब फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म हुआ था. किंग कालाशोका organized the second council at Vaishali. Probably King Kalashoka. He established the second council at Vaishali. Our first council कहाँ हुआ था? It was in Rajgira. Second was at Vaishali. Ashoka organized the third Buddhist council at the capital Patliputra. और थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र में. So first was in Rajgira, second was in Vaishali, and third was in Patliputra. It was the Buddhist council. The king who succeeded Ashoka were not efficient. अभी जो किंग अशोका के बाद हुए they were not efficient. इससे क्या हो गया? मौर्य एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया. Bhidrata was the last king of the Mauryan dynasty. Who was the last king? Brihadrata was the last king. He was killed by his general Pushyamitra, who then came to power. और इसको भी किसने मारा? जनरल पुष्यमित्र ने मारा. And he came into the power. Now this was all about the Emperor Ashoka. Now we will look at the administrative system, trade, literature, art and architecture and social life of the Mauryan period. First point is the administrative system. The nature of administrative system during the Mauryan period is clearly understood with the help of Kautilya's, Ashtrayas, Megasthenes, Indica and the inscriptions of Ashoka. अभी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मौर्य का कैसा था ये अपने को क्लियरली कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ कौटिल्यास, अर्थशास्त्रास, मेगास्थेन्स, इंडिका और जो इंस्क्रिप्शन से अशोका के उस पर से. चंद्रगुप्त मौर्य was a valiant king and an efficient administrator. अब चंद्रगुप्त was an valiant king यानी एक अच्छा राजा था और एक efficient administrator था. अच्छा राजा था और अपना साम्राज्य अच्छे से चलाना जानता था. He set up and defined mechanism of state administration which suited the economic conditions and the needs of the Mauryan Empire. अब उसने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? उसने एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेट किया जो इकोनॉमिक कंडीशन को सूट करे और नीड ऑफ द एम्पायर को भी फुलफिल करे. लाइक सी कितना सोच समझ के उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया होगा जो इकोनॉमिक कंडीशन को भी सूट करे और मौर्यन एम्पायर के नीड को भी सूट करे. द मौर्यन एम्परर क्रिएटेड अ यूनिफाइड एम्पायर. अब मौर्यन एम्परर ने क्या किया? उसने एक प्रॉपर यूनिफाइड, प्रॉपर वेल डिजाइंड एम्पायर बनाया. At the same time, they devised a decentralization administrative system for effective functioning of the vast empire. अभी decentralize कर दिया, like power सबको थोड़ी थोड़ी power दे दी, right? क्यों किया ऐसे? मौर्यन एम्पायर क्या था? बहुत बड़ा था. तो एक अशोका, एक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य क्या पूरा चला सकता था क्या इतना वास्ट एम्पायर? नो, इट वॉज नॉट पॉसिबल. इतना बड़ा साम्राज्य चलाना पॉसिबल नहीं था. तो उसने क्या किया? डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कर दिया. डिसेंट्रलाइज कैसे? आज अपने पास कैसा है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, लोकसभा, राज्यसभा है. उस वक्त उसने भी ऐसा ही कर दिया. सॉरी. इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द एम्परर देयर वाज द मंत्री परिषद, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, made up of wise, experienced, virtuous and selfless minister who gave advice to the king. अभी पहले उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या हुआ? मंत्री परिषद आया. आज अपन उनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो होशियार थे, एक्सपीरियंस थे, हाँ, जो बिना किसी सेल्फिश मोटिव के काम करते थे और किंग को टाइम टाइम पे एडवाइस भी देते थे. There was a committee of some of this minister who were known as मंत्रानास टू लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर ऑफ द स्टेट. अब एक और कमेटी थी मिनिस्टर्स की, उनको उन्होंने बोला है मंत्रानास, जो रोजमर्रा के स्टेट के काम का ध्यान रखते थे. मौर्यन
had created a stable framework of administration by creating various department of administration and appointing the experienced and expert officers over it. अब क्या हो गया, मौर्यस ने क्या किया, दे हैड अ स्टेबल फ्रेमवर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, उनका एकदम स्टेबल था, प्रॉपर काम चल रहा था, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे और एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट ऑफिसर्स थे उनके पास. दिस ऑफिसर्स वेर नोन एज अमत्या. ऑफिसर्स को क्या नाम दिया है, अमत्या. अर्थशस्त्रु मेंशंस टोटल 18 अमत्या. अभी अर्थशस्त्रु ने क्या किया, ही हैड मेंशन दैट उसमें उसमें लिखा है कि टोटल 18 अमत्यास थे. अमत्यास मतलब ऑफिसर्स थे अलग अलग एक्सपर्टीज के लिए. एक तो था प्रधान सम्राटा, एक प्रधान था, सम्राटा मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का. हाँ, संविधाता मतलब फाइनेंस होगा, सेनापति, युवराज एक्सेट्रा. कौटल्या हैज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट 30 एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. कौटल्यास में मिला है अपने को, देखो अर्थशास्त्र उसमें अपने को मिले हैं अबाउट 18 अमत्यास के बारे में इंफॉर्मेशन, राइट. और कौटल्यास में मिले हैं 30 एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स. द hierarchical order of the officer in the Mauryan Empire started from the Samrat at the head to the lowermost officer of the Gramini. अभी hierarchical order अपन कैसे बोलते हैं, लाइक बाबा पहले राजा, उसके नीचे लाइक ऑफिसर्स आते हैं, तो उधर भी hierarchical था. तो ये hierarchical कैसे जाता था, टॉप लेवल पे कौन था, सम्राट था. और लोअर लेवल एकदम नीचे के लेवल पे था ग्रामीण. एट द लोकल लेवल द पीपल वेर गिवन ऑटोनोमस राइट टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन द इंटरनल मैटर. अभी लोकल लेवल पे क्या था, लोगों को वहाँ पे जो भी ग्रामीण लेवल पे था उसको एक राइट दे दिया था कि अब तुम्हारे इंटरनल मैटर्स तुम तक, तो यू योरसेल्फ सॉल्व योर मैटर्स, डोंट कम अप टू मी. इन दिस वे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन किंगडम was decentralized. इस तरह से मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन was decentralized. पावर सब में से डिवाइड हुई थी. The most important feature of Mauryan administration was the effort made for the overall material and moral development of the people. अभी most important feature क्या था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का, लाइक वो ओवरऑल डेवलपमेंट चल रहा था पीपल का. The Mauryan administration is appreciated due to various factors such as keeping the civil and military areas separate from each other, creating, देखो यहाँ पे क्या था, मिलिट्री एरिया अलग था, सिविल एरिया अलग था, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम था, लाइक लॉ के लिए अलग सिस्टम था, सैलरी के लिए अलग सिस्टम, अलग ऑफिसर्स थे, ट्रेड करने के लिए, ट्रेड कंट्रोल करने के लिए अलग ऑफिसर्स थे. तो इस तरह क्या था, हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑफिसर्स थे. तो इसलिए उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एकदम प्रॉपर था एंड वेल डिफाइंड था. नेक्स्ट इज द ट्रेड. देयर वाज एन इंक्रीज इन रेवेन्यू ड्यू टू वेल ऑर्गेनाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम. अभी वेल ऑर्गेनाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम था तो क्या हुआ, रेवेन्यू भी अच्छा से आ रहा था. बाली वाज अ टैक्स टू बी गिवन इन द स्केल ऑफ द लैंड यूज्ड अंडर कल्टीवेशन. अब बाली क्या था, ये एक टैक्स देना पड़ता था जो आप लैंड ले रहे हो अंडर कल्टीवेशन के लिए. दैट भाग वॉज अ शेयर फ्रॉम द टैक्स ऑन प्रोडक्शन. क्या था, भाग क्या था, ये एक शेयर था जो प्रोडक्शन से आता था. सी बाली फ्रॉम लैंड दैट वॉज यूज फॉर कल्टीवेशन, भाग फॉर द प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर लैंड एंड द टैक्स एक्वायर्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. अभी एग्रीकल्चर लैंड से और उस पर जो टैक्स आ रहा था, उसके प्रोडक्शन पे जो टैक्स आ रहा था, ये क्या था, ये एक बेसिक था, फाउंडेशन था प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का. इंडस्ट्री गेन्ड मोमेंटम ड्यूरिंग दिस पीरियड. इंडस्ट्रीज भी बढ़ी इस पीरियड में. क्लोथ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट मेटलर्जी, कारपेंट्री, आइवरी आर्ट, स्पिनिंग, वीविंग एंड मैनी सच प्रोफेशंस बिगैन. अभी क्लॉथ इंडस्ट्री तो बड़ी अच्छे से बड़ी, उसके अलावा भी लाइक आइवरी आर्ट, स्पिनिंग, वीविंग, मेटलर्जी, कारपेंटर्स, ये भी सारा अच्छे से बढ़ा और बहुत से प्रोफेशनल्स आगे आए. द प्रॉस्परस एग्रीकल्चर एंड फ्लरिशिंग इंडस्ट्री लेड टू अ
लेड टू अ फ्लरिशिंग इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड. अभी एग्रीकल्चर बढ़ा, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, तो इससे क्या हो गया, इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा. Many railways were built on the trade route during this period. बहुत से नए नए रॉयल वेज भी बने ताकि ट्रेड अच्छे से हो. Many roads such as पाटलिपुत्र टू तक्षशिला, पाटलिपुत्र टू काशी उज्जैन, पाटलिपुत्र टू तमरालपीनी केम टू एग्जिस्टेंस. बहुत से नए नए रूट बनाए हैं, लाइक पाटलिपुत्र टू तक्षशिला, पाटलिपुत्र टू उज्जैन, ऐसे नए नए रूट बहुत से बनाए ताकि ट्रेड अच्छे से हो. The increasing use of iron and also the different types of iron implemented, painted, pottery and its distribution across southern part of India indicates expansion of trade. मतलब क्या हो गया यहाँ पे, आयरन ज़्यादा यूज़ हो रहा है और आयरन से नए नए इम्प्लीमेंट्स बनाए जा रहे हैं, पॉटरी बढ़ रही है और ये सारा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इससे क्या हो रहा है, ट्रेड अच्छे से बढ़ रहा है. Bharuch, Rohrup, Soparan, Trimpali and many such ports on the coastal region of India were famous for trade purpose. अब भरूच, रोडी ये सब क्या है, ये कोस्टल एरियाज थे और यहाँ पे उन्होंने पोर्ट बना दिए थे. एंड दिस पोर्ट वेर फेमस फॉर ट्रेड पर्पस. एक्सपोर्ट्स वेर कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इंडिया टू कंट्री लाइक ग्रीस, रोम, इजिप्ट, सीरिया, बैक्टीरिया, श्रीलंका एक्सेट्रा. अभी एक्सपोर्ट ट्रेड कहाँ पे कौन से कंट्रीज के साथ होने लग गया, ग्रीस, रोम, इजिप्ट, बैक्टीरिया, श्रीलंका, इन सब के साथ क्या हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड भी चालू हो गया. द कमोडिटीज सच एज कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ, लिनेन, जेरी क्लॉथ्स, स्पाइस, डायमंड, आइवरी, परफ्यूम एक्सेट्रा वेर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू दिस कंट्रीज. अभी क्या क्या एक्सपोर्ट होता था इंडिया से, तो जेरी क्लोथ, जेरी मतलब आपण आसपास म्हणतो ना, जेरी के कपड़े हैं, जेरी की साड़ी है. तो कमोडिटी सच एज कॉटन, सिल्क क्लोथ, लिनन, जेरी क्लोथ्स, स्पाइस, डायमंड, परफ्यूम, ये सारे क्या होते थे, दे वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज. ग्लास आर्टिकल्स, डाइज एक्सेट्रा वेर इम्पोर्टेड. अभी अपन इम्पोर्ट क्या करते थे, ग्लास आर्टिकल और डाइज. द गवर्नमेंट रिवाइज टैक्सेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एज वेल एज ऑन इट्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स लगाना चालू किया, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों गुड्स पे. वार्तानी, ट्रांसपोर्ट टैक्स एंड शुल्क, ऑक्ट्राय आर फाउंड टू बी मेंशन्ड इन द कंटेम्प्रेरी सोर्स. अभी देखो आज भी अपन ट्रांसपोर्ट टैक्स, ऑक्ट्राय सब कलेक्ट करते हैं. ये कब से चालू है, ये अशोका के टाइम से चालू है, राइट. In return, the government took up responsibility of security of goods. अभी गवर्नमेंट को आप टैक्स तो दे रहे हो, बट गवर्नमेंट ने आपके टैक्स देने पे कुछ तो फायदा होना चाहिए आपको. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट took up the responsibility of security of the goods. For the protection of the trading community, the government had appointed officers like Chorajukulla and Simaswamy. अभी आपका प्रॉपर ट्रेड हो, आपके गुड्स अच्छे से प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो, प्रॉपर ट्रेडिंग होना चाहिए, तो गवर्नमेंट दो ऑफिसर अपॉइंट किए थे. देर आर नोन एज चोराकुजा एंड सीमा स्वामी. नेक्स्ट इज द लिटरेचर. लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द थॉट प्रोसेस ऑफ द पीपल एंड द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन. अब लिटरेचर से अपने को क्या पता चलता है कि अब उस वक्त लोग क्या सोचते थे, उनका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कंडीशंस के बारे में पता चल रहा है. ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, along with the literature in Sanskrit language, the use of Pali and Ardhamagthi literature in Pratik language is also seen. पाली लैंग्वेज किसने यूज़ की थी, गौतम बुद्धा ने यूज़ की थी. एंड अर्धमागधी वॉज यूज्ड बाय महावीर स्वामी. तो ये लिटरेचर जो अपार्ट फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज, ये दो लिटरेचर, ये दो लैंग्वेज भी यूज की जाती थी. फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, लिटरेचर वॉज क्रिएटेड इन प्राकृत लैंग्वेज. प्राकृत लैंग्वेज में उन्होंने लिटरेचर लिखा था. द प्राकृत लैंग्वेज मेनली इंक्लूड, अब प्राकृत लैंग्वेज में क्या क्या आता है, पाली, अर्धमागधी, शूरसेनी, महाराष्ट्री एक्सेट्रा. प्राकृत लैंग्वेज में
ये सब कुछ इंक्लूडेड था। द वर्ल्ड फेमस वर्क ऑफ पानिस अष्टाध्यायिनी वॉज कंपोज इन दिस पीरियड। अभी जो वर्ल्ड फेमस वर्क ऑफ पानिस है दैट इज अष्टाध्यायिनी, इट वॉज कंपोज इन दिस पीरियड। भाषा वॉज द ग्रेट ड्रामॅटिक इन संस्कृत लिटरेचर। अभी भाषा आपण मराठीमध्ये म्हणतो बघा, बाणा, मराठी बाणा एंड ऑल, हाँ मराठी नाटक वगैरह म्हणतो। उस वक्त ये भाषा बोल के ये एक ग्रेट ड्रामा, ये बहुत बड़ा ड्रामा आर्टिस्ट था और ये सब लिखा था संस्कृत लिटरेचर में। द 13 ड्रामाज रिटन बाय हिम इंक्लूड स्वप्नवस्ताधामा। अभी 13 ड्रामाज रिटन बाय भाषा, it is known as Swapnavastadham. The most important work of this period is Kautilya's Arthashastra. Abhi the important work of this period is Kautilya, that is Ashtashastra. This text is divided into 15 sections, including total 180 topics. अभी ये जो अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, it is divided into 15 sections और इसमें 118 topics हैं. The topic from king to Ganikas and political to war strategies are found to be discussed in अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र में क्या क्या टॉपिक लिखे हुए हैं, किंग टू गनिकास, किंग से लेके नीचे राज्य तक क्या चल रहा है, उनके पॉलिटिकल और वॉर स्ट्रेटेजीज क्या थे, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है. ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड अलॉन्ग विथ संस्कृत लिटरेचर मैनी टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज. अभी मौर्य उस वक्त क्या था, प्राकृत लैंग्वेज में बहुत सारे टेक्स्ट लिखे थे अपार्ट फ्रॉम संस्कृत लिटरेचर. स्पेशली द ऑर्डर ऑफ अशोका आर इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक्स एंड पिलर्स इन प्राकृत लैंग्वेज. अभी अशोका का जो भी इंस्पायर्ड था वो सब किस पे लिखा है, रॉक एंड पिलर्स पे लिखा है, और भी प्राकृत लैंग्वेज में. द फेमस टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर त्रिपिटका वेर एडिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. अभी बुद्धिस्ट लिटरेचर का एक फेमस टेक्स्ट है दैट इज त्रिपिटका. इट वॉज रिटन इन दिस पीरियड. अमॉन्ग द टेक्स्ट ऑफ त्रिपिटका धम्मापिटका वॉज कंपोज्ड आफ्टर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. अभी बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद ये अभिधम्मपिटका वॉज कंपोज्ड. दिस पीरियड वॉज वेरी रिच फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जैन लिटरेचर. जैन लिटरेचर के लिए ये बहुत रिच पीरियड था. द टेक्स्ट लाइक धम्मवाटिकालिका, उपसंग, दंचसंगा, आचार्य सूत्र, भगवती सूत्र एक्सेट्रा वेर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड. अभी इस सब पीरियड में ये ऑल दिस टेक्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस. So we end up the topic here today. In next lecture we'll be studying about the art and architecture. Thank you.